Hello, everyone, and welcome back to the new episode of Conversation with Supriya. Scars are not the signs of weakness, they are the signs of endurance and survival. The guest of our today's show is the man of metal, Mr. Sachindra Bisht, a visual artist, an explorer, and an adventurer. So, without much ado, let's start the show. So, welcome to the show, sir. Thank you. And thank you so much for being here. सबसे पहली चीज सर, आप पहाड़ी हैं, राइट? एज योर नेम गोज. सो पहाड़ आपको कैसे इंस्पायर करता है? देखिए नैनीताल आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप. ये जगह में कुछ और तो होता नहीं है. द ओनली थिंग दिस प्लेस हैज इज विजुअल ब्यूटी. यहाँ ना कोई इंडस्ट्री नहीं है उसको छोड़ के, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है. कुमाऊनी यहाँ कभी रहे नहीं बिकॉज यहाँ खेती बाड़ी पॉसिबल नहीं थी. सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन यू आर ब्रॉट अप इन अ प्लेस जहाँ सिर्फ विजुअल ब्यूटी होती है, तो नेचुरली उसका एक और नेचुरल ब्यूटी होती है, तो उसका एक आप पे एक इम्प्रेशन अपने आप ऑटोमेटिकली पड़ता है. जो कि जब हम दिल्ली या बॉम्बे रहे तो दैट वाज द मेन थिंग दैट वी मिस्ड कि नेचर की बहुत कमी है. तो इट इज लाइक इट यू बोर्न इन इट एक्चुअली. ये थोड़ा बहुत राइट. अब देखिए सर, जैसे अगर हम पहाड़ी ही बोलते हैं, राइट? सो लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट इफ यू आर बोर्न इन पहाड़ तो आप पहाड़ी हो गए, कि मैं कुमाऊं में पैदा हुआ हूँ तो आई एम अ कुमाऊनी, और दिस इज अ सरनेम दैट आई बियर, सो आई एम अ पहाड़ी. और भी कुछ स्पेशलिटी होती है कि आप अगर आप किसी को देखो तो हाउ यू कैन मेक इट आउट कि हाँ दिस इज द पर्सन जो शायद पहाड़ से है, शायद वो उत्तराखंड से है, शायद वो हिमाचल प्रदेश से है. कैसे आपको लगता है कि हाँ इसमें ये कुछ अलग दिखता है, या कुछ चीज है जो मैं इससे सिमिलर हो पाता हूँ, आइडेंटिफाई कर पाता हूँ? Yeah, I don't think. Nothing? I don't feel that way because I have known people from New York also. All right. And they have called me that I'm very Manhattan type, indifferent. Okay. So I don't really think I like what you're saying. Like, sir, if I talk about the lifestyle of the people here, See, it's very tough. lifestyle is like, see, Nainital is like, I can hardly call myself a Kumaoni. I can't even speak Kumaoni properly. I was studying in a school and being taught by Anglo-Indians and Irish brothers Right, sir, right. in St. Joseph's here. Okay. So you can imagine that I am a very mix of a very Western and Indian culture, I guess, in everything, be it art, be it literature, be it movies, be it music. So I don't identify myself. I identify myself as a person living on this planet. That's about it. I don't believe in nationalities. I don't believe in Boundaries. Nothing. Okay. I'm a part of this universe. That's about it. Great idea. And very sir. deeply I feel it. That's a great idea. And then again, if you've like, I've lived extensively in villages and in the mountains after returning from Delhi. So I know a very different story of the mountains, you know, the plight, the migration, and very little support for reverse migration. Like people are like me are reverse migration people. We moved from the mountains, then we came back. I lived in jungles, I lived in abandoned villages, like everything. But I don't know, you know, I found out that development itna seep in nahi kiya hai. And life is very tough. It's tough, in the sir. villages. Very It is tough. It very is tough. So like when we talk about, जो आपने ही अभी कोट कर दिया बिल्कुल, we talk about out migration from hills. Generally देखिए सर, जिस दौर में आप थे, right, you were at the peak of your profession. Yeah. Right, if Yeah. you talk about your 1995s Yeah. and all. So उस टाइम पे out migration from the hills एक बहुत ही common phenomenon था. आप किसी से भी पूछो, they will definitely prefer कि मेरा बच्चा 12th के बाद बाहर जाए, और जब बच्चा बाहर जाए उसके बाद बाहर ही वो काम करेगा. It's very obvious. And even you did it. Yeah. You went with the flow, Yeah, right, I sir? started my college from here. Exactly, exactly. Then you went like for your professional growth and all. Like you were there in Delhi Yeah. for like a Initially. long period, like Yeah. if I believe. Yeah. तो वहाँ पे आप रहे, and then you were at the peak of your professional life, right? आपने editing का काम कर रहा है, videos की editing करना है, short films का, documentaries का, so many things like you were doing. But then there came a
time, a point of time in your life, you took the decision way out, you know. Generally होता है that we flow with the flow. लेकिन आप flow के साथ नहीं गए. You came back in the lap of the nature, back to the mountains. तो सर एक वो ऐसा stirring thought क्या आया, मतलब ऐसा क्या हुआ अचानक that देखिए, one day you got up in the morning and you said, no, चलो. it's not like that one day. Okay. You know, I worked in advertising, which is fake. You know, you spending 50 lakhs to make a 30-second film for soap, Okay. you know, to sell soap. And you are like really working hard because you'll get the bestest of creative professionals in media, in advertising, because it's the most paying, but it's the most fake. एक घड़ी पहनने से या खुशबू लगाने से, कपड़े पहनने से आप कूल नहीं होता है. वो एडवर्टाइजिंग की एक साइकोलॉजी है जो आपको ये फील करवाती है. So advertising made me feel how fake everything is. Then I worked in documentaries also, and documentaries also is I found it very pseudo-intellectual. It's just filmmaking, man. Matlab, it's not as shallow as advertising, but then again, it's just you're going there, documenting and coming back. So what I realized, and the other thing, security. पैसे से security नहीं आती. There was a time when I was working as a trainee in a studio for 2,000 rupees. There was a time when I was working for 1 lakh rupees for a day. But खर्चे इतने बढ़ जाते हैं, लाइफस्टाइल इतना ज्यादा पैसा ले लेती है. तो एक फिलॉसफी है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है आपके पास सामान क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है. एंड डेफिनेटली इन सिटीज दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ वाज डेफिनेटली मिसिंग. इज एवरीथिंग इज मनी. यहाँ आप एक 50 रुपए जेब में रखे, एक बिस्किट का पैकेट रखे, एक नमकीन का पैकेट, एक पानी की बोतल, आप दुनिया की सबसे अच्छी जगह घूम सकते हैं नैनीताल में. मतलब जाते नहीं है टूरिस्ट वहाँ, ठीक है, इन नेचर बेसिकली, गेट इंस्पायर्ड, गेट एवरीथिंग. बट इन दिल्ली यू विल हैव टू गो टू अ फैंसी रेस्टोरेंट. यू नो, पार्क्स आर आल्सो नॉट दैट ग्रेट. सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर फॉर फ्री. सो जब मेरी बेटियां हुई पहली, मैं वाज अ फ्रीलांस फिल्म मेकर, एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर. तो मैं अपने बच्चों को कहाँ पालना चाहता था? वहाँ जहाँ मैं मतलब काम में इतना मसरूफ और पैसा और वही जिंदगी लाइफस्टाइल में ही मसरूफ रहता, या ऐसी जगह जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, जहाँ जो चीज़ें मैं वैल्यू करता हूँ लाइफ में वो है. सो इट वॉज नेवर अबाउट मनी. आई वॉज हायर्ड बाय अडोबी as the first special effects software tester for After Effects in India in 2000. I quit that job in 2 days and went to Bombay and didn't do anything for 1 year. So money is important, but it's not that important. And if when you realize in life कि आप mediocre नहीं है, तो आपके पैसे के डर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया में 99% लोग mediocre हैं, एक्सेप्शनल लोग बहुत कम है. राइट. तो और प्रोफेशनली जाके मुझे लगा मैं एक्सेप्शनल हूँ, बिकॉज आई डिड प्रीटी वेल. मतलब बॉम्बे आई डिडंट लाइक, आई नेवर वर्कड इन फीचर फिल्म्स और एनीथिंग, बट इट्स टू मच, यू नो, व्हाट्स द पॉइंट. और उसी लेवल पे पेंटिंग भी, क्योंकि मैं सारे कंपोजिटिंग, एनिमेशन, ग्रीन स्क्रीन सब कुछ करने के बाद आई डिडंट वांट टेक्नोलॉजी एंड आई नीडेड क्रिएटिव फुलफिलमेंट. क्योंकि ये ऐसा काम है ना, इसमें क्रिएटिविटी भी है और धंधा भी है. सो इट वाज नॉट फुलफिलिंग. आप कितनी भी अच्छी चीज़ बनाएं, आप क्लाइंट को दिखाएं, उसका बच्चा भी आपको ओपिनियन दे सकता है उसमें. फिल्म मेकिंग आर्ट सब्जेक्टिव होता है, कोई भी ओपिनियन दे सकता है उसके बारे में. आपको पढ़ा लिखा होना या कुछ भी होने की जरूरत नहीं है सर. लाइफ एक्सपीरियंस. तो वो फुलफिलमेंट के लिए मैं पेंटिंग करी, क्रिएटिव फुलफिलमेंट के लिए. राइट. और सेकेंडली स्टूडियो में बैठ के, you know, you start having spondylitis, backaches and all that. Although I was very much into fitness, I wanted to do adventure. तो मैंने रॉक क्लाइंबिंग दिल्ली में शुरू करी, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आके मैंने यहाँ के जो रॉक क्लाइंबर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, नेशनल कोचेस हैं स्पोर्ट क्लाइंबिंग में, उनके साथ काफ़ी क्लाइंबिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग करी. तो मेरा मानना है कि आपकी ट्रू वेल्थ आपकी यूथ होती है, और चाहे आप कुर्सी में बैठे हैं, चाहे आप काम करें, वो तो खत्म होगी. तो इस चक्कर में मैंने आउटडोर एडवेंचर, मैंने खेत खोदे हैं,
पहाड़ों में, पत्थर तोड़े हैं नेपालियों के साथ। मैं एक एनजीओ के साथ इन्वॉल्व था, उनके साथ फंडिंग जनरेट करी अमेरिकन वॉलंटियर्स के साथ, फिल्म्स बनाई। तो बेसिकली लाइफ क्या है, बेसिकली लाइफ की फिलॉसफी क्या है आपकी? Life is about living your dreams, cherishing your Life is nothing more dreams. than a human experience, and how rich you want to be, make your human experience is what matters. So I did everything, whatever I Exactly. felt like doing, Right. because I right, want to have a rich human experience, and now I'm having an experience of being a handicap. But yet again, you know, if you focus yourself, I'm still painting. I've lost my hands, I haven't lost my talent. Yeah, still I'm doing it. I'm still exercising. तो आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आप ह्यूमन एक्सपीरियंस अपना क्या रखेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप एक थिंकिंग ह्यूमन बीइंग हैं तो एक एग्जिस्टेंशियल ट्रॉमा होता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ? हु एम आई? व्हाई एम आई हियर? इज देयर अ पॉइंट टू एनीथिंग इन लाइफ? But then you have to be very deep thinking, philosophical kind of a person to know that. It is basically, sir, wisdom. See, it's very easy to nod your head like this. Yes, yes, yes. Yeah, But then in to parties, question, everybody is changing the world. I was in Bombay. Every party, everybody is going out changing the world. it's difficult to question why, Yeah, what, precisely. when, where. It's difficult. So it's an individual. I won't say anybody should do this or not do this. It's my individual journey. Individual perception, and yes, we respect it. We should respect that. That is what I'll say. आपका पर्सपेक्शन, आपका जो भी परसेप्शन है, मेरा जो परसेप्शन है, ठीक है, हम सही हैं अपनी जगह में. और सर व्हाट आई बिलीव इज आजकल कुछ सही या गलत है ही नहीं. देयर इज नथिंग राइट, देयर इज नथिंग गुड एंड नथिंग बैड. इवन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. सब सिचुएशन पे डिपेंड करता है. तो आपकी जर्नी तो बहुत इनक्रेडिबल रही है सर. एंड आई हैड अ क्वेश्चन लाइक, मेरे को ये था कि मैं आपसे पूछूं कि आपने कभी क्रिब नहीं करा किसी चीज के लिए? किसी चीज के लिए कभी? कौन ट्रिप नहीं करता? करते हैं आप? अरे वाह. तो फिर मुझे लगा चलो दिस इज समथिंग वी शेयर टुगेदर. लाइक यू केम बैक टू दिल्ली, कभी आया थॉट कि क्यों आया? नैनीताल? हाँ, नैनीताल क्यों आया था? बहुत आया. जब वो पैसा कमाना, जो इतने ज्यादा पैसे कमा रहे थे, जब वो कमाना बंद हुआ तो डेफिनेटली यू हैव एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस. राइट. You know what is an existential crisis? When you know the world that you've known and you move into a world that is completely unknown. When I came back and suddenly you realize. So definitely that. But I have a very supportive wife. Right, sir, right. It's not possible without a family. Yeah, it's not possible. It's without not it. possible. Without my wife, it wouldn't have been possible. Exactly. She agreed to coming back. She agreed to raising children here. हमने 3 साल बच्चों को होम स्कूलिंग भी कराई बीच में. 3 साल होम स्कूलिंग? क्लास 5 से 8 तक. सर मतलब आजकल मुझे नहीं लगता कि कोई पेरेंट ये सोचेगा कि मैं स्कूल घर में रह करके बच्चे को पढ़ाऊं. But you did it. Yeah, precisely. Because I don't believe in formalized academics is not education. I studied sciences till class 12, commerce in college, and chose arts for profession, and was hired by Adobe. Okay. So basically, you can understand what I think of schooling. I don't. आपकी जो इनबिल्ट जो टैलेंट है वो तो आएगा ही आएगा, isn't it? आपका इंटरेस्ट. आर्टिस्ट क्या होता है? मतलब बेसिकली इफ यू आर्टिस्ट परसेप्शन इज अबाउट एस्थेटिक्स, एंड एस्थेटिक्स कम फ्रॉम द लाइफ दैट यू हैव लिव्ड, व्हेन यू ऑब्जर्व वेरी माइन्यूटली. और जिंदगी जो आप जीता है बेसिकली उससे आता है. सो पेंटिंग हाथ से थोड़ी बनती है, पेंटिंग दिल से बनती है. इट्स लाइक अ लव अफेयर. You know, into any art, because what's the human need for art? Art की जरूरत क्या है बताइए आप? पेट तो भरता नहीं आपका उससे. हाँ, नहीं सर, आपके इमोशंस आ रहे हैं. It's what makes us human. It separates us from animals. Art. Right. Because खाना पीना कपड़ा घर तो जानवर भी करता है. So like just I was going through your house और मुझे सारी जगह आपका काम दिखा. Even just now I was there in the washroom, I could see there also कि सर ने पूरा काम कर रखा है. There in your bedroom also I could see the hand printing and all. सारी जगह आपने भरी हुई है. तो सर आपकी जो जर्नी रही, like when we talk about, like I was going through some of your videos, तो आप अच्छी तरह से बहुत fine strokes आप बना रहे हैं with your paint brush. You're playing with the paint brush rather I'll say. फिर एक दौर ये भी आया that you are tying the paint brushes with your elbow and still you are continuing with the paint. तो ये जो पूरी जर्नी रही आपकी, राइट फ्रॉम द होल्डिंग ऑफ द पेंट ब्रश टू द टाइंग ऑफ द पेंट ब्रश, ये क्या रेवोल्यूशन लाई आपके लाइफ में?
क्या लगा रेवोल्यूशन क्या है कि ये एम्पुटेशन बहुत सडन हुआ, तो एग्जिस्टेंस जस्टिफाई हुई पेंटिंग से। तो पहले भी हुई है, जब मैं पैसे का काम नहीं करता था काफी टाइम, मैं पेंटिंग करता था और मैं ये कहता था मैं अपनी एग्जिस्टेंस जस्टिफाई कर। तो अगेन राइट नाउ इट्स फनी एक्चुअली दैट जिंदगी में अब ऐसा वक्त आ गया कि जब मुझे अपनी एग्जिस्टेंस खुद को जस्टिफाई करनी थी, बिकॉज यू नो आई वाज गिवन अ चॉइस इन द हॉस्पिटल दैट डू यू वांट एम्पुटेशन, फर्स्ट आई रिफ्यूज्ड, क्योंकि यार मेरी जिंदगी पत्थरों, चट्टानों, पहाड़ों और ऐसे में बीतने वाली थी आउटडोर। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये एक्सेप्ट करना, और ये 15 दिन में हो गया सीधे, 15 दिन बेहोश रहने के बाद। 15 days. So when I started painting, my sister made me start painting Kila in Gurgaon. She said I'd gone there for prosthetics. तो जब मैंने पेंटिंग करी, पहली पेंटिंग में मुझे लगा पेंटिंग में तो फर्क ही नहीं पड़ा, और 6 महीने हुए थे तब मेरे हाथ कटे हुए। अच्छा। तो मेरे काम में कोई फर्क ही नहीं पड़ा पेंटिंग, पहली पेंटिंग में। फिर उसके बाद मैंने एक और पेंटिंग बनाई, फिर उसके बाद मुझे 6-7 कमीशन पेंटिंग्स के ऑर्डर्स मिल गए। Okay. तो I just realized that I'm much more than my body. You know, human will बहुत strong होती है. You know, and whenever you're in a difficult, tight situation, तब also something comes out of you. You know, सवाल, जीवन का सबसे बड़ा सवाल क्या है? Who am I? मैं कौन हूँ? इंसान के लिए सबसे बड़ा, it's considered one of the biggest questions of human existence. Willpower, strong willpower is something which worked. Now this episode has told me मैं कौन हूँ. मैं वो हूँ जो काफी कुछ वो कर सकता हूँ अपने हाथ और पैर कटाने के बाद. So I'm just answering my own question. I'm knowing myself. It's an inward journey. Life is an inward journey actually. So it's a part of my inward journey, and it's very close to me, very deep to my heart, artistic expression. Right. So that is why, and it justifies my existence with or without my hands. Okay. So मैं whenever जिंदा क्यों हूँ? मैं क्यों जी रहा हूँ? Right, right. So whenever this question is resonating in your mind, कि मैं कौन हूँ, क्या एक आवाज होती है जो हमेशा सुनाई देती है आपको कि मैं ये हूँ? उसका तो जवाब यही है, मैं जो हूँ वो हूँ. I am that I am. Okay. So like. उसका और कोई जवाब नहीं होता. बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी यही कहा है, बहुत रिसर्च करने के बाद ये. तो that is what you have to accept. And secondly, see, to be in the present. See, it's a very difficult time for me right now. I won't say that I'm up all the time. I'm depressed also. I think about what has happened. But, you know, there are certain things that, like painting or exercising or anything, which tell me that I'm much more than my body, like I said earlier. And it makes me realize that, of course, you know, कि you're not limited by your body. Definitely not. और अभी तो साल भर ही हुआ है. Let's see, अभी तो mountaineering बाकी है. That is the spirit, sir. So, that is the spirit. देखते हैं क्या होता है. हाँ, नहीं सर, बिल्कुल वो भी आप करेंगे. मतलब जैसे आप बोल रहे हैं, like again when you restarted your painting and all, and you could find कि still the strokes are fine. जैसे पहले करते थे वैसे ही कर रहे. तो mountaineering भी बिल्कुल करेंगे आप. I hope so. And we would love to watch it. It's very difficult, but let's see. Yes, definitely, sir. Why not? So, like when you talk about being a visual artist, तो हर एक पेंटर होता है, वो सोचता है कि मैं एक मास्टरपीस बनाऊं. तो आपका मास्टरपीस बन गया है? नहीं, मेरी फिलॉसफी नहीं है वो. अच्छा. Painting is like a love affair. Okay. You know, all right. You choose a subject like you choose a partner in a romantic affair, I would say, not a love affair. Okay. Then you go through a lot of what you want to paint, then you decide on one. Okay. Then the relationship starts, the commitment begins. Then the first few days, you're very happy how it's coming up. फिर वो एक जगह पहुंच जाती है. फिर आप उसको फाइन ट्यून करने लगते हो. जैसे फिर you start getting abandoned. मतलब you start getting irritated with the fact कि मैं बार-बार इसको ठीक कर रहा हूँ, और उससे ये भी आपको रियलाइज होता है कि perfection can only be strived for and never achieved. क्योंकि ह्यूमन नेचर में ही नहीं है परफेक्शन. आप बार बार रिफ्लेक्ट करते हो. पेंटिंग में 70% टाइम रिफ्लेक्शन में जाता है, एटलीस्ट द काइंड ऑफ पेंटिंग आई डू. तो लास्ट में आप पेंटिंग को अबैंडन कर देते हो. तो आई डोंट बिलीव इन मास्टरपीसेस.
They're wonderful. You have a wonderful relationship with it, but in the end, you know, all you can see as a painter, you've got the critical eye. आपको सिर्फ कमियां दिखती है. मुझे अपने काम में सिर्फ कमियां दिखती है. अच्छा, ये सारा काम जो आपने करा है, मतलब आपको इसमें कुछ ना कुछ कमी हर एक में है ही है. Because human nature है, वो मेरे अंदर है. Human nature, perfection कभी achieve ही नहीं होता. नहीं कर, हाँ, perfection के लिए बोलते थे slow death. ये बोला जाता है perfection की वजह से. So last में a work of art is always abandoned. It's never completed. If I complete, if I feel okay, this is what I've done is great, I think I'll die. Okay. Then I move on to a next painting. Okay, so this is how you jump on, and you keep moving ahead. So it's like it's got a life and then it dies. That's a circle. It's a circle. It's a circle that completes. Yeah. Right. So it's okay. So like you said just now that painting, it's a love affair, isn't it? So are you very romantic or what? Is it so? Like what ma'am says, आपकी wife क्या बोलेंगी कि sir है romantic है बहुत नहीं है? You know what do you mean by like romantic is such a deep term in terms of whether you're talking about relationships, whether you're talking about passions of things. You know, it's a very deep thing. Yes, I feel deeply about things. I guess very deeply about things and very deeply about how life should be lived. Okay, so if you won't mind, I'll just ask how you proposed ma'am. She was a friend. Okay, she was a friend of yours. She was a friend. We were working together. We've been very good friends. All right. For a long time. Then two friends decided to get married to each other. Okay, so like and spoil a perfectly good friendship. That's what they say about friends marrying. Right. So like initiative was taken from your side, or like it was a mutual kind of a thing. Kind of thing. Okay, that yes, we can take our life journey we should together. Get married to each other because romantic relationships are not working out like the paintings. Okay, right. So like last 1 year, it has been a very challenging and testing period, not just for you but for your entire family, I should say, right sir? तो आपकी family as a pillar आपके साथ खड़ी रही. That I could make it out after looking at you, sir. Just in a year, you're sitting with us and then such an excellent conversation with you कि मतलब मुझे तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है. There are so many answers that you're already giving me. तो sir मतलब I just want to know कि जैसे आपकी जो family responsibilities थी, कैसे share कर रहे हैं आप लोग आपस में? How you're coping up with the things and all now? I'll tell you, coping up in terms of my wife and my mother and my daughters, I guess, are helping me out. And I got a lot of support. I got a lot of money, like it costed a lot of money, all this. A lot of money actually. And my alumni, school alumni from St. Joseph's, they pitched in a huge amount of money. My friends, my family, I got a lot of support. It's been a very loving and a very painful. You're blessed. That way you're blessed. Yeah, like a lot of people really like me a lot. So I guess that has been the reason, like family, extended family, friends. And my rock climbing friends have been throughout with me. So like sir, अभी तक जितना भी हमारा conversation रहा, what I can make out is that you have a very different perception of life. Yes. अब आप मत बोलिएगा इसलिए. If you say so. Yes, sir. You have to agree. Perception. Nice sir, like we have been meeting, so many people around. But yes, you have a different perception. So as a school buddy, a young school boy, or maybe as a college youth, आप कुछ strange चीजें क्या करते थे? कुछ अलग अपने दोस्तों से हटके, या कुछ ऐसा जो आपके टीचर्स बहुत नोटिस करते थे कि हाँ कॉलेज जाता कौन था? कॉलेज जंगलों में गुजारे हमने. क्या करते हुए ये कैमरे में नहीं बोल सकते, लेकिन जंगलों में ही गुजारे. हमने पढ़ाई में, I was not interested in academics. Like after class 10, I lost all my interest in studies. Okay. And I was doing sciences, like I said, तो मुझे उसमें बिल्कुल मजा नहीं आता था. किसी तरह 12th पास हो गए. फिर कॉलेज में क्या करें? मतलब that's the other thing about what I don't like about schooling and education system is because you get lost in it. You can't find yourself. School आपको अपने को ढूंढने नहीं देता, क्योंकि 40 बच्चे क्लास में बैठे हैं, उन सबका फिजिक्स पढ़ने का मन तो नहीं हो सकता. किसी का मन हो रहा होगा मैं खेलूं, किसी का मन हो रहा होगा मैं कुछ खा लूं, किसी का मन हो रहा होगा, लेकिन आपको वहाँ जबरदस्ती बैठना होता. So I think schools glorified crashes हैं और कुछ नहीं. Because
इट्स एन ऑब्सोलीट। ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत रिडंडेंट और ऑब्सोलीट है। ये बाबू बनाने के लिए अंग्रेजों ने बनाया था, क्लर्क्स बनाने के लिए बनाया था, और इंडोक्ट्रिनेशन और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के लिए बने। इट्स रियली नॉट एजुकेशन एक्चुअली। आई डोंट कंसिडर इट एजुकेशन, इट्स एकेडमिक्स। आप याद करो, मेमोरी इज नो लॉन्गर साइन ऑफ इंटेलिजेंस एनी मोर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आपके पास। अगर आप और मैं अभी एस्ट्रोफिजिक्स पे भी बात करने की कोशिश करेंगे, आप नॉर्मली अगर हाफ डिसेंट इंटेलिजेंट इंसान है तो 3 दिन बाद आप भी फोन में गूगल करके इतनी इन्फॉर्मेशन कर लेंगे कि आप और हमारा एक इंटरव्यू हो जाएगा यहाँ पर एस्ट्रोफिजिक्स पे, ट्रू। चाहे हमारा उससे कुछ लेना देना। So do you understand what I'm trying to say? Education is a completely different thing. And academics teaches you to teach. So over the years I realized that, because I went to filmmaking, I did like animation, graphics, I never studied there. मैंने एक स्टूडियो ज्वाइन कर लिया, sweatshop, और पहले हम खाली वो रिकॉर्डर्स में कनेक्शन लगाने का काम होता था, कुछ पैसे भी नहीं मिलते थे, फ्री में काम करना पड़ता था, 6 महीने करीब ऑलमोस्ट फ्री में। और वो एजुकेशन नहीं था लेकिन इंटरेस्ट था उसमें कि फिल्म मेकिंग में जाना है, तो सीख लिए, एडिटिंग सीख लिए, ग्राफिक्स सीख लिए, एनिमेशन सीख लिए। मतलब सीखने की चाह होनी चाहिए। सीखने की चाह बहुत जरूरी। लाइक दे से, यू डोंट, टीचर्स कांट टीच यू एनीथिंग, यू विल हैव टू लर्न। यू शुड हैव अ डीप डिजायर टू लर्न समथिंग। एंड एक कहावत है कि द वे यू डू एनीथिंग is how you do everything. Mindfully हर चीज करने की आदत होनी चाहिए आपको। Yes. वो एक है ना, जब जापानीज फिलॉसफी, you have to put a part of your soul in whatever you do. Otherwise आप मीडियोकर रहोगे, रोजी रोटी की फाइट मारोगे, आप भगवान पूजा पाठ करोगे कि मेरा अच्छा क्यों नहीं हो रहा, लेकिन आप अपना सोल नहीं दे रहोगे काम में। तनख्वाह के लिए नौकरी कर रहे होगे आप। जहाँ से आप तनख्वाह के लिए नौकरी करते हो ना, वहां से तो पहले सोच लो आप आधा तो खत्म हो गई आपका। ठीक है, इतनी फाइट नहीं है यार, रोटी तो भिखारी भी खा लेता है। रोटी अगर खानी है तो मतलब भाई ये जो भी आप कर रहे हो, डू इट विद फुल हार्ट, mindfully. You have to put your mind into it and then work. 100%. If you don't do it, you'll never excel in life, and you'll wonder why. And it'll be sad. You'll always be a mediocre. 99% लोग हैं mediocre. True. और सर अगर हम देखें भी, if we talk about different stats and all, so most of the people in our country, they're not happy with the profession that they are taking up. है नहीं, वो खुशी नहीं है। एक रिसर्च हमको बताती है that they're not. वो क्या है ना, जो पैदल होता है वो देखता है कि मुझे साइकिल कब मिलेगी, साइकिल जिसके पास होती है वो देखता है मुझे बाइक कब मिलेगी, बाइक वाला देखता है मुझे कार कब मिलेगी, अब कार अगर ऑल्टो वाला है तो वो देखता है मुझे i20 कब मिलेगी। ठीक है, धीरे धीरे करके आप प्लैटिनम प्लेटेड फरारी या रोल्स रॉयस या बेंटली में पहुंच सकते हो। There's no end to it. You can't be happy. There's no end to it. और अगर आपको कार से स्कूटर में आना पड़ेगा जीवन में, आपका मोरल ऐसा टूटेगा ना जीवन में, आप शक्ल दिखाने, आपको लगेगा मैं लोगों को फेस कैसे करूं सोसाइटी। What we suffer is status anxiety. This is a mediocre, sir. This is what is a mediocre, right? Status anxiety. Yes. The society suffers. मेरा status क्या है समाज में, उसके लिए आदमी काम कर रहा है। Most of us are working to earn money, to buy things, to impress people who don't even care about us. Impress yourself यार। Right. अपने आप को impress करो भैया। बाहर वाले को तुम, उसमें भी आप बेंटली चला के भी होगे ना, उसमें भी आदमी पीछे से गाली देगा कि यार इसके 2 नंबर का पैसा है इसके पास, ये कहीं से आया। Your things shouldn't define you. It's very important. Right. True, sir. And sooner or later, when you're young, I'm sure, क्या कहते हैं, it matters, But नहीं, सब realize I guess कर with लेता है age, इंसान। after age, who are you trying to impress? You did not to, sir. At any नहीं, stage अच्छे कपड़े पहनने तो बॉडी बना लो यार, वो भी तो बर्थडे सूट है, वो भी तो कपड़ा ही है, पहना है तुम्हारी आत्मा ने। अच्छा, that way. It's the same thing. आप कुछ भी पहन लो, if you got a good physique, clothes Armani में पहन के भी, Versace पहन के भी, an ass in a tuxedo is still an ass है। किसी ने कहा है, मैंने नहीं कहा है, but you have to understand that. Right. You have to understand, because what is life about? What is pointless है life यार, एक दिन मर जाना है। So देखिए, जैसे like I was talking about your childhood days itself.
हर एक की कुछ ना कुछ आदत होगी, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको याद आएगा. लाइक व्हेन आई यूज्ड टू गेट ऑन टू माई नर्व्स, मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता था एज अ तो किड. अभी भी आता है फिर. आपको भी आता है? हाँ, नहीं मेरा सर कम हो गया पहले से काफी, कभी कभी आता है. तो मैं आई यूज्ड टू क्लाइंब द ट्रीज, लाइक लीची के औचाच वगैरह रहते थे हमारे वहाँ पे, तो मैं पेड़ पे चढ़ जाती थी. वो मेरी आदत होती थी एक. तो आपकी कोई जरूर आदत होगी. नहीं, आदत क्या है, इट्स आई टेल यू दैट आई थिंक बचपन से, मतलब देखिए आप नैनीताल में पैदा हुए हैं तो आप जंगल वंगल ये तो घूम ही रहे हैं बचपन से. नथिंग न्यू ठीक है. अबाउट इट. ठीक है, हमेशा से ऐसी हरकतें करी है कि क्लास 7-8 में कि आप किसी क्लिफ से नीचे उतर गए और आज मर जाए. ऐसा तो बहुत बार हुआ हमारे साथ स्कूलों पे. मतलब इतनी ऐसी जगह है नैनीताल, मतलब 90% लोग तो जाते ही नहीं वहाँ नैनीताल के. तो वो तो हमेशा रहा. बट आफ्टर वर्किंग प्रोफेशनली एंड ऑल, आई थिंक ह्यूमन परस्यूट्स में आर्ट और एडवेंचर ये बहुत जरूरी है. बिकॉज आर्ट क्या होता है, आपकी एक क्रिएटिव साइड को अपील करता है, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी. और एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या करते हैं, वो आपको आपकी फिजिकल लिमिटेशंस बताते हैं. एंड आई थिंक दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन परस्यूट्स मोर देन एनीथिंग एल्स. मतलब ठीक है, खाना उगाना और ये सब तो है ही, खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, दैट्स द बेसिक थिंग. Basic But necessity. besides, what makes us human is that you have to find out what you're capable of physically and creatively. And for me, rock climbing and painting was that. It was that. Okay, so Rock that climbing was is very intense and वहाँ aggression भी निकलता है. पत्थर आप चढ़ नहीं पा रहे, मार लो सर उस पे. मार लो, हाथ मारो पत्थर पे. yes, आपका जो went out था पत्थर emotions आसान का. थोड़ी हो जाएगा तो आपके लिए चढ़ दो. हाँ. तो वो उसको जो आपके अंदर एंग्स्ट होती है, उसको अग्रेशन, वो स्पोर्ट से काफी निकलती है. ओके, सो और हमारे लिए रॉक क्लाइंबिंग था वो स्पोर्ट एक्चुअली. और सेकेंडली नेचर से बहुत कनेक्ट होता है क्लाइंबिंग. एक थोड़ा सा एंटी सोशल स्पोर्ट भी है. अगर आप योसेमिटी अमेरिका की क्लाइंबिंग हिस्ट्री देखें, वैली अपराइजिंग एक बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है. तो इट्स सॉर्ट ऑफ समाज से थोड़ा दूर ही बेहतर. वो हमेशा society, I can do without it. Right. But I'm not a very social person. I don't want to live up to social norms at all. I'm a human, I'm an animal. मतलब human क्या है, animal ही है. Animal ही बिल्कुल सर, वो तो हमारा instinct है. That is our instinct. I want to enjoy this planet, यार, in which I've inherited, I believe. Exactly. Just because by being born on this planet. Right. So like sir, just now you have said about Mother Earth, right? We talk about nature. Environmental degradation की हम बात करें, हर कोई इसके बारे में जानता है. बहुत बड़े बड़े एजेंडास बनाए जाते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे. एक चीज जो आपको बहुत ज्यादा दर्द देती है जब आप देखते हो कि यार मेरा नेचर कितना सफर कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, वो एक चीज क्या है? मतलब वो तो आपको लगता है कि यार दिस इज समथिंग क्रूअल नाउ, इससे नेक्स्ट लेवल तो क्या होगा? See, everybody knows this development is not sustainable development. You can't sustain it. हमारे पास एक बोरा आलू है, ठीक है, अगर हम 5 खाएंगे तो जल्दी खत्म होगा, एक खाएंगे तो कम खत्म होगा. You've got one earth. Resources तो लिमिटेड है ना. Money is not wealth. अब ये आईफोन भी है जो आपका, वो पत्थर से तो बना है, मिट्टी से तो बना है. वही हम गाँव के बच्चों को भी सिखाते थे, ये मिट्टी पत्थर ही से बना है, कहीं से आसमान से थोड़ी गिरा है बन के. You have to understand the difference between money and wealth, firstly. और लोगों को money, they think money is wealth. Greed is there because actually क्या है ना, आपको रोज 10 रोटी खाने की आदत होगी, मैं आपको 5 दूंगा ना, आपको बहुत बुरा लगेगा. अब जमाना वो आ गया. Everybody has to step back. We can't afford this lifestyle very long. I don't think that much. मतलब, and the thing is that best things in life are for free. Go for a trek, go outdoors. You don't have to build an adventure park जिसका इतना बड़ा carbon footprint होगा और इतनी like. There are other things, but the point is that human nature. You know, like the Mayans say, humans are born with a hole in their heart. Right. Sir. They'll keep taking till the time there's nothing more to take. And the Mayans said it then. It's human nature. Human heart has got a hole. It'll never fill. It will never fill. It'll never fill. Desires आपको पता ही है ना, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती ना. Exactly. Human nature, हम कुछ नहीं कर सकते इसका. So it's basically greed is the only reason. Like
You can call it greed, you can say anything for that matter. और आप social media, everybody knows कि लोगों के पास private jet हैं, private islands हैं, you know, कैसे रहते हैं. Everybody's dream is that. So देखो, end of the day suffer कौन करता है? Average इंसान. यार average इंसान होता कौन है? नहीं, वही जो हम बोल रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं उसका भी एक लालच होता है. स्टेटस की. कोई उसका भी एक लालच होता है. Maybe survival है ना सर. अभी अगर प्राइस राइज हो जाता है ना, अगर इन्फ्लेशन हो गया, सबके दाम बढ़ गए बहुत ज्यादा, कौन अफोर्ड नहीं कर पाएगा? कौन अफोर्ड नहीं कर पाएगा? नहीं, अफोर्ड करने की बात नहीं है. देखिए, who are the true gods of this world? असली भगवान कौन है इस दुनिया के? वो जो दुनिया चला रहे हैं, जिनकी वजह से रिसेशन होता है, जिनकी वजह से इन्फ्लेशन होता है. People are running the world. Let's get real. Nobody sitting in the. मतलब किस्मत एक बहुत बड़ी चीज है. I believe in luck, but and you know what the distribution of wealth in the planet is. How are those people living? Exactly, sir. So यही point it's a selfish nature of human beings. You can't do. यार मर्सिडीज का मजा तब है ना सिर्फ जब मेरे पास हो और औरों के पास ना हो. तब मुझे मजा आएगा उसे चलाने में. सबके पास होगी तो क्या मर्सिडीज है यार, या फरारी, कुछ भी कह लो. तो ये ह्यूमन नेचर है, इसका इंसान की फितरत. खत्म हो ही नहीं सकता. ये नहीं खत्म. ये खत्म हो ही नहीं सकता. हमारे अंदर नहीं है क्या? हम भी तो we are not perfect. I am not perfect. Nobody. I have all, like, I feel humility, but I feel anger. I feel kindness, but I feel jealousy. You know, ये सारे इमोशंस हमारे अंदर है. कब ओवर पावर कर ले हमको, हम कोई कुछ नहीं कर सकते. एंड व्हेन आपको ही पता है, जब आपकी फीलिंग्स आपको ओवर पावर करती हैं तो आप बिल्कुल लाचार हो जाते हैं भाई साहब. आपको कितना ही ज्ञान हो. हाँ, you're zero. We are emotions, and we are built that way. So I don't know. I don't know what the solution for this problem is, or the way the world is. आप देख रहे हो दुनिया में क्या हो रहा है. In coming 5 years, like this year also, if we talk about, there was very scarce snowfall year. वो तो खैर है. नाम के लिए हुई बस. अब आप गर्मी देखे सर. Yes, it was too hot outside. और हमने तो देखा है, हमारी जनरेशन तो देखा है ना, because packaged things हमारी जनरेशन में सबसे ज्यादा आए. पूरा वो चेंज ओवर जो 80s पैकेज्ड और ये सब. और कॉर्पोरेशंस चला रहे हैं दुनिया. प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी है. वेलफेयर सोसाइटी है कहाँ नहीं है सर. वेलफेयर सोसाइटी है जस्ट फॉर द नेम विल से. राइट सर. नाउ लाइक जैसे आप एडिटिंग क्या करते थे वीडियोस की, राइट? कभी कोई फनी इंसिडेंट हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया and you all started laughing out aloud? नहीं, it was too serious to be funny. We haven't been able to send episodes, computers crash कर गए, we forgotten talk. तो it's not funny actually. नहीं मतलब नौकरी पैसे का सवाल होता है. एडवर्टाइजिंग में अगर आपकी 20 लाख रुपए का बजट है एक शिफ्ट की शूट का, अगर वो 1 से 1.5 लाख मतलब 1.5 शिफ्ट हो जाती है तो आपका 30 लाख रुपए का बजट हो जाता है. Okay. बहुत हाई स्ट्रेस है, बहुत वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ में, बिकॉज़ टू मच मनी इज इम्पोर्टेंट. हाँ, जहाँ ज्यादा पैसा है तो वहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा है. सामान बेचना है उन्होंने. एग्जैक्टली. सो आई रियली एंड पॉइंटलेस है, सब झूठ है. बिल्कुल. सर, आई जस्ट कोट व्हाट यू हैव कोटेड अर्लियर. आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया कि मनी एंड वेल्थ, दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट थिंग, राइट? दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल होता है, यू नो, विच वी कंसिडर एज फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून. ग्रीटिंग्स भेजते हैं हम, है ना, हैप्पी दिवाली वाला मैसेज आता है, देखते हैं अपने फ़ोन पे, तो वही वाला सीन आता है कि भैया पैसों की वर्षा हो रही है, पूरी गिर रहा है पैसा इधर उधर से. आप जब कभी किसी को दिवाली की ग्रीटिंग्स आप सेंड करते हैं, किस इमोशन के साथ आप भेजते हैं? क्योंकि आपका परसेप्शन मैंने बोला बिल्कुल अलग है. नहीं, आई जस्ट विश मैन हैप्पी दिवाली एक व्हाट्सएप कर देंगे. नहीं, फिर भी मतलब आपने अपने फ्रेंड को किसी को आपने बोला हैप्पी दिवाली, तो आप किस उससे उसको हैप्पी दिवाली बोलते हैं? एक क्या इमोशन आपके अंदर आता है कि लाइक नॉर्मल ग्रीटिंग पीपल, यू नो? ओके, नथिंग बियॉन्ड इट. आई रियली डोंट थिंक. हां, बिकॉज़ एवरी डे इज दिवाली. Every day you are alive. Right, sir. So now we'll have a short game with you. Very short. Yeah, sure. Nothing like आप आराम से बैठिए, मैं भी आराम से बैठी हूँ. It is what and why. So I'll give you 2 options. Both are balancing each other. आपको एक लेना है. Then you have to justify कि आप वही क्यों ले रहे हो. Shall I give you an example? Yeah.
Okay. Like suppose if I say this white light and warm white light. दो ऑप्शंस है हमारे पास में. एक येलो कलर की लाइट आती है, हाँ, warm होटल्स light वगैरह में होता है. येलो लाइट होती है. एक होती है थोड़ी वाइट वाली जो होती है, ब्राइट सी होती है. अगर कोई मुझे ऑप्शन देगा तो मैं बोलूंगी आई विल गो विद द वाइट लाइट. वाइट लाइट क्यों? क्योंकि ठीक है आप रीडिंग वगैरह आराम से कर सकते हो, राइटिंग वर्क आप इजीली कर सकते हो. सो दैट वुड बी माय चॉइस, राइट? सो सिमिलरली आई विल बी गिविंग यू टू वर्ड्स. आपको एक चूज करना होगा, आपको जस्टिफाई भी करना होगा क्यों. So if you say, Yeah, maybe start. Yeah, Right. yeah. So the first one goes is river or ocean. River. Why? Fresh water, man. Very simple. Youth. And I'm a mountain person. पानी, समुद्र का पानी खारा होता है यार. तो हम गोवा नहीं जाएंगे. मतलब I personally love rivers, so as you can see. हाँ, नहीं So right. it's because I guess हमारा ocean से इतना connect नहीं है, हम तो पहाड़ You're में. more close to the rivers. Okay, okay. Family time or painting? You might be in a dilemma now. Actually, because I paint at home, so it's I guess it's both happening at the same time. साथ ही होता है दोनों. साथ ही हम होता है. हमेशा घर से ही काम किया. हमारे स्टूडियोज भी जब हम एडिटिंग भी करते थे दिल्ली में तो हमारा स्टूडियो घर में ही होता था. अच्छा. We always worked from home. Okay. Both my wife and she's a copy editor. वो घर से काम करती थी, मैं भी कई शादी से पहले से ही घर से काम करता था. Okay. टेक्नोलॉजी ने ये बहुत अच्छा किया. Right, right, sir. अब हम बात करते हैं काफिल. आपको पता होगा, हाँ, आपको खुमानी भी पता होगा, राइट? खुमानी इज दैट एप्रिकॉट एंड जो हमारे काफिल होते हैं वो इन्हीं के. मेरा जो रॉक क्लाइंबिंग सेंटर जो मैं बना रहा हूँ वो इन सबके ऑर्चर्ड्स के बीच में ही है. अच्छा अच्छा. तो आप काफिल क्या के पेड़ में तो मेरा अपना काफिल का पेड़ है. अच्छा अच्छा अच्छा. तो फिर आप आराम से चढ़ के पेड़ को हिलाकर अच्छे से शेक करके बैठ के काफिल खाए मैंने. ओह माय गॉड. तो बहुत फोटो भी मेरे पेशेंस पास है. इंस्टाग्राम में दे दूंगा आपको. अच्छा 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 अच्छा. तो आपको ज्यादा क्या पसंद है सर? आपको काफिल ज्यादा मुझे पसंद सारे है? फ्रूट्स पसंद है. नहीं, एक चूज करना है सर. ये तो दिस इज अ लाइक रूल ऑफ द गेम. व्हाट एंड व्हाई? यू विल गो विद इट. एप्रिकॉट. एप्रिकॉट आप लोगे, लेकिन मैंने खुमानी बोला था. नो सॉरी, एप्रिकॉट. मैंने खुमानी. खुमानी only. हाँ हाँ हाँ. आई सेड खुमानी. हाँ. खुमानी और काफल में तो ऑब्वियसली काफल. काफल ही खाओगे. 100%. ओके ओके. राइट सर. नाउ सपोज इफ गिवन अ चांस, आपको एक पेट रखना है, राइट? सो यू विल बी गोइंग विद द पेट ड्रैगन और अ पेट डायनासोर. It's an inane question, but nonetheless, why not a dragon? I've got a dragon on my arm. Right sir, right sir. Good answer. A wise answer, I must say. So sir, like almost we have come towards the end of the session. So now if we talk about the dream project, हर किसी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है. किसी का होता है कि यार मैं राइटर बन जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा. आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? मैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहा था जब ये हुआ सेप्टिसीमिया. मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि एक आर्ट और एक आउटडोर एडवेंचर लर्निंग सेंटर बनाऊं, जो मैं शीतला मुक्तेश्वर के पास पिछले 2-3 सालों से उस पर काम कर रहा था, जिसमें मेरे साथ मेरे आउटडोर रॉक क्लाइंबिंग कोचेस और ये सब भी काम कर रहे थे. हम गांव के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे और पेंटिंग तो मेरा पैशन है, तो मैं उसमें और वुड कार्विंग वगैरह भी मैं कर रहा था, बिकॉज टू रिवाइव यू नो जो ओल्ड वुड कार्विंग है और ये सब, बट ऑन माई ओन. So I was working on my dream project and it came to a sudden abrupt end. But let's see what happens because the place is still there. और if अगर मैं funding arrange कर सका, then I would like to also, अब उसमें एक और चीज़ और जुड़ जाएगी, outdoor learning और art तो वो रहेगा ही. Maybe for people who've had things like this, amputation and all, it could be a fitness come outdoor initiation center for people, disabled people. US वगैरह में होते हैं ऐसी जगह, but I don't think, and I saw also that rehabilitation का इंडिया में सीन कुछ खास है नहीं, मतलब उतना, मतलब आप ठीक है थोड़ा बहुत है, but I think that would be, I've thought about it. Okay. तो लेट्स सी क्या होता है आगे. बट so that's about it, I guess. हाँ, नहीं sir, बिल्कुल, that's a dream project. Like and I've been working. definitely you're working and you'll get the results also soon after seeing your high spirits, sir. That I'll say. Now sir, just before we wrap up the session, I just want
अ स्ट्रॉन्ग, जितने स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और करेजियस आप है, एक मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए. I don't know, you know, मैसेज में I don't know, मैसेज तो आपके अंदर से खुद ही आना चाहिए आपके लिए. But I guess you've got one life यार, एक जिंदगी है. Have as enriching a human experience you can have, and then it's going to be game over. So depends whether you can want to run after money or things, you can do that. But have an enriching life. I believe that, and that is what I am also having still. बस यही है. ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच Thank you सर very much. फॉर बीइंग इन अ शो. और एक चीज़ मैंने आज सीखी, हर पॉडकास्ट में सीखती हूँ, आज जो सीखा वो ये था दैट इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू गो विद द फ्लो, बी विद द फ्लो, राइट सर? थैंक यू सो मच सर. Thank you so much. Thank you everyone for joining us in this series. I hope today's episode has filled you with a lot many energy bubbles. So do like, share and subscribe, and kindly don't forget to comment. See you soon.